हेलो व्यूअर्स, तो आज होगी दुश्मन की साजिश कामयाब। ऐसे ही शुरुआत सुनना चाहते हैं ना? मेरे से जो बार बार मुझे लिखते हैं कि मैम आप इतनी बोरिंग से स्टार्ट देते हो, तो क्या बोलूं इसके अलावा। जब मेरा टॉपिक ही पढ़ाई से रिलेटेड है तो पढ़ाई से ही स्टार्ट करूंगी। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द पेपर एनालिसिस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ICSE क्लास 10 फॉर द ईयर 2024-25. As you know, in chemistry, ICSE class 10, we have 13 chapters. So starting with first chapter, which is periodic table and periodic trends. So in question number 1, 4 MCQ are there. In question number 2, 2 marker questions are there in compulsory section. Then in question number 3, 3 marks are there. In question number 6, 2 plus 3, 5 marks are there. So total of this chapter is 14, which is more than the previous year because earlier it was carrying 11 marks. Next is chemical bonding, second chapter. In question number 2, 3 marks questions are there. In question number 8, 2 marks question are there. It means total 5 marks, which are decreased from the previous year because earlier it was carrying 7 marks. Next is acid, base and salt. It is carrying 1 MCQ and 3 marks in question number 2, means compulsory section. Then 3 marks in question number 3 and 3 marks in question number 7 also. So it carries 10 marks, which is same as the previous year. Next is analytic chemistry. It is carrying 4 MCQ and 1 mark in compulsory section in question number 2 also. Then in question number 8, 2 marks are also. So 7 marks from analytic chemistry. और आपको पता है कि analytic chemistry के marks हम अलग अलग कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका क्वेश्चन और प्रैक्टिकल वर्क का क्वेश्चन सिमिलर होता है। तो उस क्वेश्चन को हम ऊपर भी कैरी कर सकते हैं, नीचे भी कैरी कर सकते हैं। बट मुझे जो ज्यादा मैच करता हुआ दिखाई दिया एनालिटिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, वो है 4 मार्क MCQ, 1 मार्क इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2 मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 8. तो 7 marks from analytic chemistry, which is more than the previous year. Earlier it was carrying 4 marks. Next is mole concept and stoichiometry. 2 marks in MCQ, 2 marks in question number 4 and 3 plus 4 question number 7. 7 marks in question number 7. So total 11 marks from mole concept and stoichiometry, क्योंकि इसमें आपको 2 numericals दिए गए हैं इसी चैप्टर से. So 11 marks carry कर रहा है, which is same as the previous year. Next is electrolysis. 2 MCQs are there. 5 marks question in question number 2 also, because you know in question number 2, 5 questions of 5 mark each are there. Next in question number 5, 3 marker question. In question number 6, 3 marker question. Total 13 marks from electrolysis, which is again more than the previous year. Earlier it was carrying 7 marks. Next is metallurgy. 3 marks questions in question number 2. In question number 4, again 2 marks. In question number 5, 2 marks. Total 7 marks from metallurgy, which is 2 less than the previous year. Earlier it was carrying 9 marks. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. फर्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. इस बार के लिए सिर्फ एक MCQ में हमारे पेपर में दिखाई देगा. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया. 1 mark in question number 4 and 2 mark in question number 5. Total 3 marks from ammonia. Study of compound nitric acid में question number 3, 2 marks. Question number 4, 4 marks. So total 6 marks from study of compounds. And sulfuric acid, 1 question in compulsory section and then 2 marks in question number 3. So 3 marks from study of compound. So overall अगर हम एवरेज चेक करेंगे तो study of compounds के अभी के जो हमारे मार्क्स बन रहे हैं it are 13 और लास्ट ईयर इट वाज 25. तो 25 से इस बार ये रिड्यूस हुए हैं क्योंकि आप देख सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड आपका 6 मार्क्स का था, 1 मार्क का हो गया. 9 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का हो गया. ये हमारा नाइट्रिक एसिड सेम रहा है और 4 मार्क्स का सल्फ्यूरिक एसिड जो कि अब 3 मार्क्स का हो गया. तो टोटल मार्क्स इस चैप्टर से थोड़े कम किए गए हैं. हालांकि उनको हम ऐसे नहीं कह सकते कि यही सेम आपके पास आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 25 मार्क्स का ये स्टडी ऑफ कंपाउंड्स था जो कि इस बार के लिए 13 मार्क्स का आपको स्पेसिफिक पेपर में दिखाई देगा. ये नहीं है कि ये फिक्स ही हो गया कि इतना ही आएगा, बट आप इसे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं. और लास्ट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है. 1 marks in MCQ, 2 plus 5 marks का नोमेनक्लेचर क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि 7 और 8 मार्क्स कंपल्सरी सेक्शन में ही कवर कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. 1 mark इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन 3 plus 3 marks का सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का भी आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में. सो टोटल इट इज कैरिंग 15 marks नाउ एंड अर्लियर इट वाज कैरिंग 13 marks. नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल वर्क, जिसका क्वेश्चन आपको पता है स्टडी ऑफ कंपाउंड, एसिड बेस, सॉल्ट, एनालिटिक केमिस्ट्री तो मिक्स होके होता है. तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्क का और इसमें 3 मार्क का. टोटल 5 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल वर्क से भी है जो कि प्रीवियस ईयर 3 मार्क्स का था. तो मेजर ट्रेंड जो आप चेंज देख सकते हो यहाँ पर वो ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल वर्क और एनालिटिक केमिस्ट्री या यूं कहें कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनके मार्क्स इंक्रीज किए गए हैं क्योंकि वो चाहते यही है कि बच्चा जो भी करे वो समझ के करे. तो अर्लियर इट वाज कैरिंग 7 मार्क्स. टोटल अगर मैं एनालिटिक और प्रैक्टिकल वर्क को कंबाइन करती हूँ तो आपके पहले थे 7
11 मार्क्स, जो कि इस बार 12 मार्क्स कर दिए गए हैं, यानी कि 5 नंबर सीधे आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के साथ इंक्रीज किए गए हैं, ताकि मोर जजमेंटल पेपर बन सके, आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर पाए। और उसके मार्क्स एडजस्ट करने के लिए स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में थोड़े से मार्क्स रिड्यूस किए गए हैं, 2 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बढ़ाए गए हैं, और आपके पास यहाँ अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में भी इंक्रीज दिखाई दे रहा है आपको अभी के ट्रेंड के हिसाब से। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, स्लाइट वेरिएशंस होनी होती हैं, हम आपको सिर्फ आइडिया दे सकते हैं ताकि आपको पूरा पता चल सके। जैसे अभी आप देखिए मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री आपके कितने ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, एक ही चैप्टर जिसको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए उसके 11 मार्क्स हैं। ये लास्ट ईयर भी 11 था, अभी भी 11, इट मींस इसका फिक्स है कि ये 11 नहीं तो 12, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क का हम टॉलरेंस लेके चल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो अब जो स्टूडेंट्स मुझसे बाद में पूछते हैं साल खत्म होने के बाद कि हम मैम कौन से चैप्टर्स करें, तो अब आपको साफ आंसर दिखाई दे रहा है आपके क्वेश्चन का। मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री, अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़े भी अच्छे हैं तो ये चैप्टर आपको आराम से समझ में आएगा। मोरओवर मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो सेपरेट पार्ट्स में बनाई हुई हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाई हुई हैं, तो आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 मार्क्स कैरी कर रहा है, जिसमें से 8 मार्क्स तो कंपल्सरी सेक्शन में ही है, वो भी नोमेनक्लेचर के 5 मार्क्स हैं। तो आपको इन पे फोकस करना ही पड़ेगा। पीरियोडिक ट्रेंड सबसे इजी चैप्टर है, तो वही अगर 14 मार्क्स कैरी कर रहा है, 14 नहीं भी करेगा तो भी 10 करेगा, तो 10 भी कम नहीं है। तो यही इन 3 चैप्टर से ही स्टूडेंट पास हो सकता है, तो बाकी के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।